Hello everyone, thank you so much for clicking on the link to this video. If you are new to my channel, please also check out my channel for other videos where I post in stuff from literature, some of the explanation videos for novels, plays, poems, and stories, and some of the other concepts within English literature as well. So if you really like this video towards the end, please hit the subscribe button or please just comment below any other topic that you want me to cover. And thank you again for watching this video. So I'll be talking about how to structure or frame your answers as a literature student. So if you are pursuing English as your major subject, or even if you have it as an elective, so a lot of people struggle with actually writing good answers. Like, you might be able to understand the concepts through the summaries or through by reading as well, and also you might be able to fully grasp the themes and the characters. But what really allows you to score marks is when you structure or frame your answers better. And as a literature student myself, I was somebody who really struggled with this. But gradually, over the years, after a lot of hit and trial methods, I have some of the ideas, even though I've not yet mastered it. But still, this could be seen as a starting point on how you can structure or frame your answers as a literature student. So let's just get started with the video. Now, where to begin, right? Like, a lot of students इस चीज़ में struggle करते हैं कि आंसर को start कैसे करना है. And trust me when I say this, any professor or any teacher who's going through your paper, English answer paper, सबसे पहले वो आपका introduction ही देखेगा. So it is always advisable to start up with something that is a fact. You can use something. पहले तो आपको इंट्रोडक्शन उस चीज़ पे बेस करना है जो कि आपका क्वेश्चन हो. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वेदर इट इज़ डिस्कस, वेदर इट इज़ कंपेयर, वेदर इट इज़ एग्जामिन और एनालाइज. बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. एनालाइज करना बहुत अलग है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा यू नीड टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जबकि हर में होती हैं. बट एनालाइजिंग इज़ मोर अबाउट thoroughly going through it. Discuss me, you can also bring in a lot of your arguments, then examine, and then we have compare. So comparison I think is understandable. Examine again, आपको बहुत सारे arguments लाने पड़ते हैं. But even though ये जो चार terms है, जैसे discuss, analyze, examine, compare, ये चारों टर्म्स इवन दो दे इन्वॉल्व यू टू राइट मोर, आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लाओ. ऐसा नहीं है कि अगर कंपेयर का क्वेश्चन नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. और डिस्कस का क्वेश्चन है तो आप एनालाइज नहीं कर सकते. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी रिलेटेड, राइट? बट अगर आप जो जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका आंसर बेटर होगा डेफिनेटली. देन आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. लाइक, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि सिर्फ क्वेश्चन ऐसे रीड कर देते हैं, जस्ट वो कीवर्ड उठा लेते हैं कि ओके इसमें यू हैव टू टॉक अबाउट मॉडर्निज्म और इसमें यू हैव टू टॉक अबाउट दिस पोएम. बट व्हाट यू रियली नीड टू फोकस ऑन कि पूरे क्वेश्चन की सेंस क्या है. इज इट टॉकिंग अबाउट सम आइडिया जो कि आपको लिखना है, कोई थीम पे फोकस करना है, फॉर एग्जाम्पल लोनलीनेस, या कोई थीम, yeah, the modernist elements in this novel. So always try to identify what is the main thing that you have to write. Okay, don't just write summaries in your answer. Trust me, आपका इंग्लिश प्रोफेसर या आपका इंग्लिश टीचर बिल्कुल भी ये नहीं देखना चाहता है कि आपने समरी लिखी है उस पोएम की. यू नीड टू राइज अबव दैट. इवन इफ आप समरी से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बनाओ, ट्राई टू गो थ्रू द समरी पूरी अच्छे तरीके से, थीम्स को भी फोकस करो. बट यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट. जब आप आंसर लिखोगे तो जो की थीम बोला गया है क्वेश्चन में, आपको उस पर फोकस करना है. देन टेक्स्ट को बहुत ध्यान से देखना है कि वो टेक्स्ट आपको जो भी बोला गया, बिकॉज क्वेश्चंस यूजुअली हैपन इन दिस वे दैट एग्जामिन द मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स इन मेंडिंग वॉल, अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. So you have these three elements. You have the key theme or the idea, and then you have a text, and then what you're supposed to do. So you have to three. These are the three main elements.
नाउ अब आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कैसे करोगे? यू विल स्टार्ट योर आंसर विद समथिंग लाइक योर इंट्रोडक्शन शुड डू ओनली थ्री थिंग्स हियर। ब्रीफली मेंशन द टेक्स्ट और द ऑथर। आपको अपने टेक्स्ट या अपने ऑथर को बहुत ज़्यादा इन डिटेल बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए, स्पेशली आई थिंक ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, कि अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए वो इतना बड़ा पैराग्राफ ऑथर के बारे में याद कराएंगे या टेक्स्ट के बारे में याद कराएंगे कि टेक्स्ट इस ईयर में लिखा गया था, इसकी रिविजन इस ईयर में हुई थी। बट ट्रस्ट मी, दैट डज नॉट हेल्प। वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन ही जाएगा अगर पॉजिटिव नहीं जा रहा है तो। सो ब्रीफली मेंशन करो कि ये टेक्स्ट लिखा था। आप ईयर भी डाल सकते हो, बट ओवर द ईयर्स ट्रस्ट मी, कोई ईयर सबको पता होता है कि वो किस ईयर में लिखा हुआ है। तो आपका प्रोफेसर वो नहीं पढ़ना चाहता है कि आपने वो ईयर या डेट याद की है। इट रियली डज नॉट हेल्प। सो ब्रीफली मेंशन करो कि ये टेक्स्ट है जो कि दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है, सो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट द रॉबर्ट दैट द मेंडिंग वॉल वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस ईयर। ब्रीफली मेंशन इट, ओके? एंड इवन इफ यू skip it, that is even more better. अब what makes a really good answer is for the students who actually start with what is being asked. अब अगर modernist elements है तो you can start up with the definition of modernism. तो अगर आपको root से start करना है, so start up with the definition of the main key theme or the main key idea. Start up your answer with the definition of the concept that is being asked instead of mentioning कि ये author ने इस year में ये text लिखा था। रेफर डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। अगर वो मॉडर्निज्म पूछ रहा है तो स्टार्ट अप विद द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निज्म, राइट अबाउट मॉडर्निज्म, देन स्लोली लिंक्स बनाओ अपने आंसर में। अपने आंसर को डिस्कनेक्टेड मत बनाओ कि पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिख दिया, फिर पोएम के बारे में लिख दिया, फिर मॉडर्निज्म के बारे में लिख दिया। दिस वुड गिव ऑफ द इम्प्रेशन कि ठीक है, आपने बस बहुत कुछ याद करा हुआ है। बट इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो दे नेवर वांट टू सी व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड। They only want to see your structuring of your ideas and how you are bringing forward your arguments. I'm repeating this again. उनको ये नहीं देखना है कि आप क्या याद करके आए हो, आपको समरी आती है नहीं आती है। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या जो फैक्ट्स है नॉवेल में, क्या आप उनको उस आइडिया से रिलेट कर पा रहे हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स को ला पा रहे हो। सो रेफर डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, देन स्टेट योर मेन आर्ग्यूमेंट। ठीक है? अपनी मेन आर्ग्यूमेंट पे भी रहो। यू डोंट जस्ट नीड टू लाइक, अगर मॉडर्निज्म पूछा तो मॉडर्निज्म के बारे में पूरा टेप दिया और उसको समरी से लिंक कर दिया। दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। व्हाट मेक्स अ गुड आंसर इज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग आउट समथिंग न्यू टू इट। स्टेट योर मेन आर्ग्यूमेंट कि व्हाट डू यू फील। कि क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं, बट व्हाट इज़ योर आइडिया, कि आपका मेन आइडिया क्या है। क्या आपने ये मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स देखे उस पोएम में, क्या मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स देखे इन पोएम में। सो दिस इज वॉट योर इंट्रोडक्शन कैन बी अबाउट। ऑल राइट? क्वेश्चन को सीधा डायरेक्टली रेफर करो। डोंट मेकअप एक पैराग्राफ सिर्फ हवा में कि बस ऑथर ऐसे ऐसे था, उसने ऐसे ऐसे लिखा, उसकी फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं जानना चाहता है उस आंसर में। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली स्ट्रक्चर योर इंट्रोडक्शन। एंड देन वी हैव हाउ टू राइट अ स्ट्रक्चर्ड आंसर। क्लियर पैराग्राफ्स लिखो अपने आंसर में। अपना आइडिया रीस्टेट करो। जो भी आपने एक आर्ग्यूमेंट डेवलप किया है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डेवलप किए हैं, तो उनको सपोर्ट करो इंस्टेंसेस से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोलना है कि ये कैरेक्टर एक लोनली कैरेक्टर था और इसकी वजह से आइसोलेशन की थीम्स आपको इस नॉवल में फील हुई हैं, तो कौन सी सिचुएशंस में वो लोनली फील हुआ, यू कैन टॉक अबाउट दैम। बट ऐसे भी नहीं कि फिर आप पूरा सीन डिस्क्राइब कर रहे हो। You can just write out that how this character was feeling lonely because he did not have much friends in the novel and something like that. Give evidences for your arguments. एक होता है कि लोग arguments नहीं बनाते हैं, but then when they make arguments they are not giving relevant examples for it. ठीक है? सो ऑलवेज सपोर्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो उनको एग्जाम्पल से सपोर्ट करो। एंड देन एक्सप्लेन हाउ इट प्रूव्स योर पॉइंट, कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, सो ही यूज टू कीप हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ, ही डिड नॉट हैव मच स्पेस टू एक्सपीरियंस थिंग्स इन हिज लाइफ। तो ऐसे से करके हाईलाइट, मतलब अगर आपसे आइसोलेशन पूछा है, डिफाइन आइसोलेशन। डिफाइन कि कौन सा कैरेक्टर आइसोलेटेड था, आपको किस सिचुएशन या किस इंस्टेंस से लगा कि वो आइसोलेटेड है। देन टॉक अबाउट कि ठीक है ये आइसोलेशन हो गया, बट अब इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी और कैसे ये सब प्रूव कर रहा है जो भी की थीम या जो भी की आइडिया क्वेश्चन में पूछा गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम योर मेन बॉडी।
Okay, so introduction, I'm repeating it again. Introduction is basically don't go for information facts. Just start up with the main key theme idea. Then इस जो आपका मेन बॉडी होती है आंसर की, उसमें आप बहुत ज़्यादा एविडेंसेस डालो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स डालो, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस डालो, इवन दो यू नॉट डिस्क्राइबिंग अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, बट स्टिल इस पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ समरी डाल देते हैं कि ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, और एंड में वो आइसोलेटेड हो गया था। बट नो, स्टार्ट ऐसे करो कि वो आइसोलेटेड था, और वो आइसोलेटेड इसलिए था क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ, और ऐसे आपका ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड होता है। यू आर सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट। आप सिर्फ ऐसे समरी से बस नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग। जस्ट इमेजिन दैट why would your professor want to read something that they've already been teaching for all these years? उनको तो summary आती है। They are not going to give you marks for the summary, right? Summary does help. I'm not saying कि summary help नहीं करती। ये arguments आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको summary नहीं आएगी, but summary is just the starting point of it. And if you want me to show you some really good examples, you can always mention in the comment box, and I can show you some examples with the videos that I make. We can have like very detailed sessions on this as well. But for this video, I hope that you are able to get my idea on how to at least structure your main body. And then we have importance of a well-written conclusion. What happens a lot of time is that a lot of professors do not, I think it's natural psychology, you can say, कि कई बार स्टार्टिंग वाले उस पर फोकस नहीं करते हैं, वो लास्ट का पैसेज ज़्यादा देखते हैं कि आप उसको लास्ट, क्योंकि लास्ट में आप अपने आर्गुमेंट को समराइज करते हो, राइट? सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट दे डू इज दैट दे डायरेक्टली रेफर टू द कंक्लूजन एज वेल, जबकि आई एम नॉट श्योर कि हर कोई करता है या नहीं करता, बट देन अगेन इफ दिस इज समथिंग जो कि आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर को बेटर करने के लिए, सो देन व्हाई नॉट। इसमें अपने आर्गुमेंट को रीस्टेट करो इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है कि ये आपने आर्ग्यूमेंट बनाई और इसको आपने ऐसे सपोर्ट किया। इसमें अब आपको उसको दोबारा एलैबोरेट नहीं करना है, जस्ट रीस्टेट इट। देन ब्रीफली सम अप योर की पॉइंट्स कि आपने ऐसे ऐसे इसलिए कहा था क्योंकि दीज वर दी आर्ग्यूमेंट्स दैट यू मेक इन योर आंसर। देन शो व्हाई दिस डिस्कशन मैटर्स, कि इसका ओवरऑल जो लार्जर नॉवल में क्या एम्फेसिस रहा, या लार्जर मैसेज ऑफ द वर्क में क्या एम्फेसिस रहा। सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर गुड कंक्लूजन। इसमें कोई न्यू आइडियाज मत ऐड करो, इससे आपका सिर्फ कंक्लूजन बढ़ता रहेगा, एंड देन इट विल बी लाइक अ लूप होल, एंड आप अपने आंसर को कभी अच्छे से एंड नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज राइट अ गुड कंक्लूजन। समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल से अ गुड कंक्लूजन इज इवन बेटर दैन अ गुड बॉडी और अ गुड इंट्रोडक्शन। सो फोकस ऑन योर कंक्लूजन, अपने आर्गुमेंट को अच्छे से कंक्लूड करो। And this is how I believe that you can write a good, well structured answer. If you want a more detailed video, or if you want more relevant examples, you can just comment and I will surely make a video about it. And thank you so much for watching this video. I really hope that this is helpful for you. Thank you so much.